سب سے پہلے آپ کو بتائیں مہنگائی خبر ہے۔ ریلیف کے 3 ماہ مکمل ہو چکے، بجلی صارفین بھی تیار ہو جائیں۔ بنیادی ٹیرف فی یونٹ 7.12 روپے تک بڑھ جائے گا۔ وفاقی حکومت نے ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی صارفین کو 3 ماہ کا ریلیف دیا تھا۔ شہریوں کا کہنا ہے غریب آدمی پہلے ہی بل ادا نہیں کر پا رہا، مزید بوجھ بھی ایک ظلم ہے۔ عام آدمی کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ شہریوں اور تاجروں کا حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ ہے۔ ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں ٹیکس دہندگان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جان لیں گے مہر عمران سے۔ جی بتائیے گا کیسی مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل بات کریں گے۔ آج ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے اور اس حوالے سے چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور جو شہری گوشوارے جمع نہیں کر پا رہے ان کے لیے کافی مشکلات سامنے آئیں گی۔ اس حوالے سے جو ٹیکس ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی اپیل کر دی ہے ان ٹیکس دہندگان کے ساتھ کہ اس کی جو لمٹ ہے، جو ٹائم ہے وہ بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اپنے گوشوارے جمع کرا سکیں۔ اس حوالے سے مسائل اور پریشانیاں بھی آ رہی ہیں۔ کیا مسائل ہیں، کیا پریشانیاں ہیں؟ سید جنید ممتاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے اور کیا مطالبہ ہے اس حوالے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 30 ستمبر 2024 لاسٹ ڈیٹ ایف پی آر نے رکھی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی۔ اس میں جو سب سے زیادہ جو پریشانی آ رہی ہے، آئرس کا سسٹم 3 دن سے نہیں چل رہا۔ آن لائن پورٹل ہے ایف پی آر کا جس کے اوپر ہم گوشوارے جمع کرواتے ہیں۔ ٹیکس پیئرز کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ سیکنڈلی پاسورڈ ریکور نہیں ہو رہے، اس میں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اگر یہ ٹائم ایکسٹینڈ نہ کیا گیا اور 30 ستمبر ہی ڈیٹ رکھی گئی تو لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ زیادہ تر لوگ لیٹ فائلر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ فائلنگ کریں گے اور ڈیٹ ایکسٹینشن نہ ہونے کے بعد تو وہ لیٹ فائلر کے اوپر ان کو پراپرٹی خریدنے اور پرچیز کرنے کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس بھرنا پڑے گا۔ بہت زیادہ مشکلات ہیں اس کے اندر۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم بڑھنا چاہیے اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا حکومت؟ حکومت کو ایک تو ریونیو جنریشن کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لوگ ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں لیکن آئرس کا جو سافٹ ویئر ہے پی ایس آئی ڈی جنریٹ نہیں ہو رہا، چلان بن نہیں رہے، لوگ پیسے ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہیں، بینکوں کے باہر کھڑے ہیں اور سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ اربوں خربوں روپے کا حکومت پاکستان کو نقصان ہے اور ٹیکس پیئر حضرات کے لیے بھی نقصان ہے کہ ان کو زیادہ بعد میں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ بالکل اس حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ایف بی آر حکام سے، چیئرمین ایف بی آر سے، حکومت سے کہ فوری طور پر جو ہے یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے کچھ دن کے لیے تاکہ جو رہ گئے جو مشکلات ہیں وہ ان کا ازالہ ہو اور زیادہ سے زیادہ گوشوارے۔ جی مہر عمران بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں مظفر گڑھ کے علاقہ روہیلا والی میں خاتون اور اس کی بیٹی پر تیزاب پھینکنے کا معاملہ۔ مقدمے میں نامزد ملزمان کے لواحقین کا روہیلا والی میں احتجاج۔ علاقہ مکین بھی بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے۔ تیزاب گردی کا واقعہ 4 روز پہلے پیش آیا۔ مظفر گڑھ کے علاقے روہیلا والی میں تیزاب گردی کیس میں گرفتار ملزمان کے لواحقین کا احتجاج۔ موزہ محال خاکی جنوبی بستی ملانہ کے مکینوں کا کہنا تھا کہ پولیس تھانہ روہیلا والی نے عمران، عرفان، بشیر احمد اور خادم حسین کو غلط طور پر ملوث کیا۔ مظاہرین نے مقدمے کو فوری طور پر ڈسچارج کرنے اور گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جو معاملہ ہوا نا تیزاب گردی کا تھانہ روہیلا والی میں، ہم اس کی اپیل کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اوریجنل نہیں ہے، یہ 2 نمبر معاملہ کیا گیا ہے۔ ہم آپ کے توسط سے اعلیٰ حکام سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس کی اوریجنل تفتیش کی جائے۔ ہمارے مجرم بے گناہ ہیں، ہم بے گناہی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمیں انصاف یعنی فور نہیں انصاف ملا جائے۔ گرفتار ملزمان کے لواحقین کا کہنا تھا کہ سویرا بی بی پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کیس کی آڑ میں خاندانی تنازعات کے باعث گاؤں کے شرفا کو ملوث کرنا اور گرفتار کروانا سراسر ناانصافی ہے۔ میں ایک کو جانتا کہ یہ جڑے مجرم بنائے ہیں یہ بے قصور ہیں، یہ نہ حق دیں ان کی وجہ کہ مدعیاں نے جو ہے نا انہیں کو چنے تھے، لہذا مدعی جو ہے نا وہ انہیں اپنی تحقیقات نہیں کرائی جو ہے نا کہ کون ہے مجھے، لہذا میں ریکویسٹ کریں نا وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور آر پی او صاحب کو، ڈی پی او صاحب کو کہ یہ جو ہے نا تحقیقات کریں کہ کون مجرم۔ اس طرح اصل ملزمان تک پہنچنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ لواحقین نے کہا کہ پولیس نے تفتیش درست طریقے سے نہیں کی۔ اعلیٰ پولیس افسران نئے سرے سے تفتیش کروائیں تو اصل ملزمان سامنے آ جائیں گے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ جن ماں بیٹی پر تیزاب پھینکا گیا ان کی گھریلو رنجش تھی۔ انہوں نے مطالبہ کی کہ صاف اور شفاف تحقیقات کی جائیں تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔
शुजाबाद के मजदूरों का बलूचिस्तान में कत्ल का सानहा, साबिक वफाकी वजीर जावेद अली शाह की रूही से खसूसी गुफ्तगू। कहा हुकूमत बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए खसूसी तवज्जो दे। मजीद जानेंगे हसन मलिक से, जी आगाह कीजिए। जी, हालिया जो वाकया बलूचिस्तान में हुए जिसमें साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मजदूरों को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, इस तरह के पहले भी वाकयात देखने में आते हैं, लेकिन हालिया वाकये ने स्पेशली साउथ पंजाब में और शुजाबाद में एक तशवीश की और उसके साथ साथ एक ख़तरे की लहर दौड़ा दी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह साहब मौजूद हैं। ये वाकयात आज से नहीं, बड़े अरसे दराज से इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं और हम कई लोग शहीद हो के आते हैं। पहले हमारे इलाकों के लोग गुर्बत की वजह से कंधार जाया करते थे, वहाँ से भी इसी तरह की लाशें आया करती थीं। फिर जब अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत बन गई तो अब लोग कोयटा और उसके गिरद नवाह में रोज़गार की तलाश में जाते हैं, हालांकि उन्हें पता भी होता है कि वहाँ इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, मगर गुर्बत उन्हें घसीट के ले जाती है। इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि हमारा इलाका इंतहाई पसमानदा और गरीब लोगों की जगह है, जहाँ से लोगों को जाना पड़ता है अपने मदावा करने के लिए बेरोज़गारी का। इसके बावजूद कि उन्हें मौत नज़र आ रही होती है, फिर भी बेचारे रिस्क लेके जाते हैं। अब जो वाक़यात होने लगे हैं, ये एक बहुत बड़ा सान्या और अलमिया है कि ये 7 लोग तकरीबन एक ही ख़ानदान से थे। अब कल जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ कोहराम का आलम था, वहाँ बल्कि पता चला कि अब वहाँ कोई मेल मेंबर ही बाकी नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म के मनाजर वहाँ देखने में आए हैं। और ये सिलसिले इस तरह क्यों हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हुकूमती लेवल पर हर सतह पर हमें इसका पूरी तरीके से अदराक होना चाहिए और इसका क्या तदारुक किया जा सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमने तो यही सुना था कि बलोचों की और पठानों की अपनी रवायात होती हैं, वो मेहमान नवाज होते हैं। उसके बरक्स आप पंजाब में देखें, यहाँ तो हर शख्स किसी भी कॉर्नर से आता है। तो पंजाब तो लखपाल बना हुआ है। किसी तरह कराची में लोग जाते थे, वहाँ गरीब तरीन आदमी भी गुजारा कर लेता था, अमीर तरीन भी कर लेता था। और पंजाब में भी ये सोच ही अभी तक नहीं आई कि किस कौम से कोई बंदा, मगर वहाँ ये जो असबियत की वबा फैला दी गई है, मैं समझता हूँ इसमें हिंदुस्तान, इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। और कुछ लोग उनके एजेंट्स बनकर, उनकी पेरोल पर होकर इस किस्म के काम कर रहे हैं। हुकूमत को इस तरफ काम करने की शदीद ज़रूरत है और उन्हें चाहिए कि इस तरह के कोई मौके पैदा करें कि यहाँ के लोग जो हैं वो यहीं कारोबार करें, यहीं अपना रिस्क हासिल करने की कोशिश करें, बनिस्बत इसके कि बाहर जाएं। अगर इस तरह आगे मजीद बढ़ी। अस्पतालों को बिना बख्शा। जनूबी पंजाब में निश्तर अस्पताल मुल्तान में तजावुजात माफिया के हिसार में आउटडोर तक तजावुजात माफिया मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो शहर मुल्तान में तजावुजात ने जो है वो अस्पतालों को भी नहीं बख्शा हुआ। मेरे पीछे ये आपको नश्तर 2 जो नज़र आ रहा है, नश्तर का गेट नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पर भी रक्शे तजावुजात जो है वो आपको दिखाई देंगे। और इसी तरीके से अगर बात करते चलें शहर मुल्तान की, तो शहर मुल्तान में इस वक्त मैं नश्तर अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ की अगर सूरत हाल की बात करते चलें तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो रोड हैं उसके ऊपर जो है वो शहरियों की आसानी के लिए जो फुटपाथ बनाए गए थे, उनको तो हम ढूंढ ही रहे हैं कि वो फुटपाथ कहाँ है। हम कोशिश करते हैं कि उन फुटपाथ तक जो है वो पहुंचा जाए, क्योंकि ये रास्ते जो बनाए गए थे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, वो इसीलिए थे कि मरीज़ जो है वो यहाँ से गुजरेंगे। शहर मुल्तान के अंदर जो है वो फुटपाथ को ढूंढना शायद थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हो गया है। कैमरामैन दिखाए तो ये मेरे पीछे जो है वो नश्तर अस्पताल का गेट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस नश्तर अस्पताल के गेट के साथ ही बात करते चलें तो यहाँ पर जो है वो हमें तजावुजात भी उसी तरीके से भरपूर किस्म की जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि असली तौर पर जो है वो गैर कानूनी है। हम यहाँ पर कोशिश जो है वो करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो फुटपाथ को ढूंढा जाए। ये देखिए रोड की सूरत हाल जो है वो कहाँ तक है। और उसके बाद इसी तरीके से चलते चलते शायद मेरी निगाहें जो हैं वो ढूंढने में कामयाब हो जाएं कि किधर है वो फुटपाथ जो शहरियों के चलने के लिए जो है वो बना हुआ था। यहाँ पर जो है वो हमें नज़र तो आ रहा है कि यहाँ जो है वो
ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाया गया ये फुटपाथ है, तो शहरियों के लिए जो है वो वापस बचा है कि शहरी जो है वो यहाँ पर चलकर रोड जो है वो क्रॉस करेंगे। लेकिन इन फुटपाथ पर कौन चलेगा, इसके बाहर ही इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए ढाबे ढाले जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपको मालूम है जिस जगह पर आप बैठे हैं ये गैर कानूनी है? मालिक पता सर। मालिक को पता है। यहाँ पर और लोगों की तरफ चल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। भाईजान, ये इंतज़ामिया में कौन ऐसा बंदा है जो आपसे जो है वो इस जगह पे बैठने के भत्ते लेता हो या चीज़ें लेता हो, जिसकी बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं? जो बोलते लेते हैं अपना नाम बताते हैं। देखें, इंतज़ामिया ज़ाहिरी बात है अगर किसी को लगाने की इजाज़त दे रही है तो ज़ाहिरी बात है कुछ मामलात होंगे, और जो लेते हैं वो अपना नाम बताते हैं, ऐसा कहना है यहाँ पर मौजूद शहरियों का। लेकिन देखिए मैं कितना पीछे जो है वो इस टाइम निकल गया हूँ, लेकिन अभी तक भी मुझे यहाँ पर तजावज़ात चारों तरफ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और शहरियों की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अब भाईजान, पाकिस्तान है, हम दोनों इसी मुल्क के अंदर ही रहते हैं। इंतज़ामिया जो है वो ज़ाहिरी बात है ख्वाब खरगोश के जहाँ मज़े ले रही है उसके अंदर सारे काम पाकिस्तान में कुछ ले दे के होते हैं। ये बताएं कौन लोग हैं यहाँ पर, कितना लिया दिया जा रहा है और उसके बाद ये इजाज़त दी गई कि आप यहाँ पर अपने बच्चों की रोज़ी कर सकें? हमें तो मालूम नहीं है, हम तो खुद दिहाड़ीदार हैं, यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। ये तो मालिकों को पता होगा ना क्या लेन देन है, ये तो उनके, हम तो खुद दिहाड़ीदार हैं। कि आपके घर भी कोई परेशानी अल्लाह ना करे इस तरह की आ सकती है कि आपका भी कोई मरीज हो सकता है जो कि इस रोड से गुजर कर एम्बुलेंस तक अंदर पहुंचेगा। इस सड़क की बड़ी जाम है, ये देख के मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, सिर्फ आप ही नहीं बाकी लोग भी वहाँ तक बुरी मुश्किल। क्या आप नहीं समझते कि यार इस रोड को तो साफ होना चाहिए, मरीजों को तो बख्श दे, इनका क्या कसूर है बेचारा? पहले तो कुर्सियाँ कम लगाते थे, अब जब से इमरजेंसी आगे गई है ना अब लगाने लगे हैं ज़्यादा, क्योंकि पहले जो ये फ्रंट वाली कुर्सियाँ ना पहले फ्रंट पे नहीं होती, बाद में तकरीबन 12 बजे के बाद होती हैं जब रोड क्लियर हो जाता है। ये अब इमरजेंसी यहाँ पर इतनी तो है नहीं, इमरजेंसी थोड़ी आगे चली गई है 3 नंबर गेट के पास, इसी वजह करना थोड़ा सा सेटअप बना लेते हैं। फिर जो है वो सेटअप बना लिए, लेकिन सेटअप जो है वो तो है ही गैर कानूनी, होना तो नहीं चाहिए। भाईजान आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं आपकी भी फैमिली अल्लाह ना करे किसी मुश्किलात का शिकार हो सकती है इस रोड से गुजरते हुए। ये जा बजा लगी हुई तजावज़ात है, इसकी वजह से एम्बुलेंसें भी फंसती हैं, लोग भी मर जाते हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है कि डॉक्टर तक पहुंचा जाए। इस तमाम सूरत हाल में इंतज़ामिया क्या कहेंगे, किसने इजाज़त दे दे कि इस तरीके से आप लगाएं और अपना कारोबार करें? सर इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंतज़ामिया एक्शन नहीं ले रही। एक दिन काम होता है, एक दिन तजावज़ात वाले आते हैं, दूसरे दिन फिर वो ठेले लग जाते हैं। आवाम को परेशानी तो बाद होती है ना इसमें, तो लिहाजा अब ये उस रोड पे लगे, उस साइड पे लगे हुए हैं, सारा निज़ाम आते हैं घंटे के लिए, फिर वही रेड़े वही ठेले, फिर वही परेशानी आवाम के लिए। अब ये छाँव गर्मी में लोग वहाँ पे भटक रहे हैं, दरख्त में जगह नहीं है बैठने की, हर जगह पे ठेले बने हुए हैं, तो आवाम को तो लिहाजा परेशानी है ना। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन लें। गवर्नमेंट एक्शन ले? गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेगी? गवर्नमेंट तो खुद इंसानी दी है। शहरी खुद कह रहे हैं कि लोग हमसे पैसे ले जाते हैं और पैसे लेने वाले अपना नाम थोड़ी बताते हैं। ऐसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर कारपोरेशन कहाँ है, कमिश्नर नोटिस क्यों नहीं ले रही, किसकी जेबों में कहाँ से पैसा जा रहा है, ये एक सवालिया निशान है जो आम गरीब और मुतवस्सित तबका जो यहाँ से गुजर रहा है, जो बीमार हैं, उनकी जो है ज़िंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा औकात ने दरबार सखी सरवर का 3 महीने का बिल अदा न किया। वाजिबात की अदम अदायगी पर वापडा ने दरबार सखी सरवर की बिजली काट दी। एसटीयू ने टीम के हमरा दरबार सखी सरवर का बिजली कनेक्शन काटा। मुल्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों का शहर में सर्च ऑपरेशन। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि सर्च ऑपरेशन थाना गुलगश्त और थाना सदर मुल्तान के इलाकों में किया गया। 71 से जायद घरों, 4 दर्जशुदा किरायादार समेत दीगर अहम मकामात की चेकिंग की गई। 108 अफराद की CRO और 5 व्हीकल्स की भी चेकिंग की गई। अब आपको बताएं, उच्च शरीफ में मोटरवे पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 1 करोड़ मालियती गाड़ी और 20 लाख मालियती बैटरियां पकड़ ली गईं। पुलिस का कहना था कि मुल्जिमान तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि माल मसरूक का तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दायरा दीन पनाह में BISP सेंटर्स पर बदनज़मी और करप्शन का मामला। डायरेक्टर BISP का नोटिस। करप्शन और बदउनवानी पर 2 असिस्टेंट कंप्लेंट मुअत्तल कर दिए गए। अमजद सराई और मोहम्मद उस्मान करप्शन की वजह से मुअत्तल कर दिए गए। सेंटर्स पर 2 नए असिस्टेंट कंप्लेंट तैनात कर दिए गए हैं। बेनिफिशरी का कहना था कि नए असिस्टेंट कंप्लेंट होने के बावजूद भी सेंटर बदनज़मी का शिकार है। बेनिफिशरी ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
बाद आपको बताएं, MN अब्दुर्रहमान कांजू डिप्टी कमिश्नर काटी THQ अस्पताल कहरोड पक्का का दौरा, इमरजेंसी वार्ड, अमले की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया। मजीद जानेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर बराए दाखिला MNA अब्दुर्रहमान खान कांजू ने आज डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुर्रऊफ, मेयर और इस तरह साबिक MPA मलिक शाह मोहम्मद खान जोया और असिस्टेंट कमिश्नर इज़म शहजादी कैमरा THQ हॉस्पिटल का दौरा किया है। उन्होंने यहाँ पर ज़ेर इलाज जो मरीज़ हैं उनकी इयादत भी की है। मज़ीद हम बात करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर बराए दाखिला MNA अब्दुर्रहमान खान कांजू से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है क्योंकि आबादी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मरीज़ों की रेशो भी बढ़ गई है, तो स्टाफ की कमी को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। शहरों की बड़ी जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने DC साहब ने, AC साहिबा ने और मलिक शाह मोहम्मद जो वज़ीर आला साहिबा की तरफ से इसके रिस्पॉन्सिबल हैं स्कूल इसके अपने हॉस्पिटल के लिए, हमने इसका विज़िट की है और बड़ी तफसीली मरीज़ों से भी बात की है और MS से भी इनके मसाइल को डिस्कस किया है। इसमें एक चीज़ मुशाहिदे में आई है कि वज़ीर आला साहिबा के विजन और उनके इक़दामात की वजह से लोगों का एतमाद हॉस्पिटल्स पे बढ़ा है और उस बढ़े हुए एतमाद पे पूरा उतरने के लिए फ़ंड्स को भी मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें इंसुलिन की कमी का इशू है, यहाँ पे हम डायलिसिस अपनी मदद आपके तहत ज़्यादातर चला रहे हैं और उसके बाद मज़ीद भी HR का हमारा शदीद यहाँ पे इशू है। इंशाअल्लाह DC साहब विद इन डिस्ट्रिक्ट को रैशनलाइजेशन के ज़रिए यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज की तादाद हम बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह आज हमने जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस बनाई हैं वो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तक पहुँचाएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ का बजट भी बढ़वाएंगे और ह्यूमन रिसोर्स में भी जितनी खातिर खा ज़्यादा आ सके, मैं समझता हूँ लोगों के लिए सहूलत होगा। लोधरा अब्दुर्रऊफ मेयर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, MS THQ हॉस्पिटल जिन्होंने 6 बेड से जो एमरजेंसी थी उसको 20 बेड्स पे ले आए हैं, तो लेकिन डॉक्टर्स की जहाँ पर कमी है, तो आप डिस्ट्रिक्ट के सरबराह हैं इंतज़ामिया अमूर के, तो क्या फौरी तौर पर कोई डॉक्टर्स यहाँ पर अरेंज किया जाए क्योंकि एमरजेंसी में बड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मैक्लोडगंज में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का दौरा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान ने अचानक दौरा किया। DPO ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया और लोगों के मसाइल सुने। मजीद जान लेते हैं ताहिर रजा से। जी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैक्लोडगंज में, जहाँ पर आज DPO भावनगर जनाब नसीबुल्लाह खान साहब ने सरप्राइज विजिट किया है और इनसे जानते हैं कि आज के इनके विजिट का क्या मकसद था। जी सर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये CM पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विजन है और हाजी साहब के पर अहकामात हैं कि आप लोगों के दरमियान जाएं और ताकि उनकी घर की दहलीज पे उनको इंसाफ फराहम किया जा सके, उनके पुलिस रिलेटेड मसाइल सुने जाएं और वो हल किए जाएं। उसी सिलसिले की कड़ी थी। आपने देखा कि हम सब लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, मुद्दई मुकदमात से भी मिल रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस और लोगों के दरमियान फासले भी कम हो और उनके मसाइल भी उनकी दहलीज पे हल। DPO साहब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक लोगों को उनके मसाइल उनके दहलीज पर हल करने के लिए हमने ये विजिट किया। जी ताहिर रजा, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा।